So good morning, students. Okay, this particular Good class morning, sir. is for clearing your doubts, right? And basically, how you are going to solve all the problems, not all the problems basically, but you have to practice it, right? So I can give you some kind of confidence by this particular session, right? And I observed that most of the students are unable to draw the sketches on the AutoCAD. So if you are able to draw the sketches, then the remaining thing is only study. Okay, so and only the concept. So if you know the concept, you can draw anything. I hope you are agree with this particular point. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So let me share my AutoCAD screen. Okay. So I hope you can able to see my screen. Yes. Can you able to see my screen now? Can you able to see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you able to see the AutoCAD now? Yes, sir. Very good. Okay. So this is what the interface of the AutoCAD is. Basically, now you are going to uh, uh, learn. Okay, and these things are basically already you are aware of that, but most of you are still facing problem in the installation of AutoCAD and in starting with the AutoCAD, right? So what I'm going to do is basically, okay, so this is basically the interface. I hope you don't have problem in opening this, right? So what we can do, again we will write down the commands. Okay, so see, I have not done any changes, or I have not enter any command, okay, like ds or d enter, like such kind of commands I have not enter. Okay, so whatever is there, that is basically a default. Okay, but most of you have observed in the class, in the practical sessions, that your arrows are getting bigger, your arrows are getting smaller. Okay, so the thing is, peoples are means not aware how to basically adjust the screen and all, so resolutions and all. Okay, so I request, there is no need to give some assignments or need to modify everything. Okay, so whatever are there, okay, so that is basically the default on my screen. Okay, so see, all these things are basically default, right? So you have to use that. Then what we are going to do is, we are going to start with the limits. Okay, first of all we are setting our screen, so limit 0 comma 0, right? And then 15 comma 10, right? Then grid. See, in the command box I am writing everything. Okay, grid, so grid spacing is basically 0.25, right? And then Z enter, A enter. So everyone should get such kind of screen. If somebody is not getting even after practice, so that is a big problem for him or her, right? So after that, right, so next what I'm going to do is, I'm going to click on I'm going to write snap command. Okay, and the snap spacing will be 0.25. so now you can check, my basically cursor is moving 0.25 spacing. So this should be with everyone, right? So this should be with everyone. अगर ये नहीं हो रहा है आपका वाला, तो प्रॉब्लम होगा, आगे स्केच भी बराबर नहीं आएगा, राइट? सो आई एम प्रेसिंग जेड एंटर, ए एंटर, मेरा स्क्रीन फिर से एक बार सेंटर में आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं हम, पीडी मोड, इसकी वैल्यू लिखते हैं 3, है ना? और पीडी साइज, इसका वैल्यू लिखते हैं 0.1। तो ये सभी को होना चाहिए, और ये बेसिक कमांड है, ये मस्ट कमांड है, ये आपको आना ही चाहिए। इसके बगैर आपका ऑटोकैड सॉल्व नहीं होगा। मैंने बोला था आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपने ओपन किया है वैसे ही उसको चलाना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद में अभी देखिए कैसा होता है कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखता होगा कि किसी को लेयर्स नहीं दिखती है, किसी को ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस नहीं दिखते हैं। तो क्या करेंगे हम, हमने बताया था कि हम यहाँ पे जो भी स्पेसिंग मिलता है आपको, है ना, टूल बार्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ऑटो कैड में जाने के बाद में यहाँ पे हम 4 प्रॉपर्टी चेक करते हैं। कौन सा, ड्रॉ, मॉडिफाई, आ गया मॉडिफाई, मॉडिफाई, है ना, ड्रॉ, इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से एक बार, ड्रॉ, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टीज, राइट, और लेयर्स और मॉडिफाई आप क्लिक करके रख सकते हैं अगर यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपका क्लिक होना जरूरी है,
नहीं दिख रहा है आपको कुछ सिंबल्स, तो इसमें से एक कोई भी आपका अनक्लिक रहेगा, इसकी वजह से आपको बेसिकली ये कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी ड्रॉ करने के लिए नहीं दिखेगा। तो कौन कौन सा होना चाहिए? ड्रॉ, लेयर्स, प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड। ये मस्ट कमांड है। ये मस्ट का मतलब होता है कि ये आपको देखना ही है, और ये जब भी आपका एग्जामिनेशन रहेगा आपको 15 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, मतलब अपने हॉल में जाना है और ये सब कमांड चेक कर लेना है। जब आपका स्क्रीन बिफोर एग्जामिनेशन टाइम क्लियर हो जाएगा तब आपको एक कॉन्फिडेंस अलग सा रहेगा कि आपका स्क्रीन जो सा आप सेट करना चाहते हैं वैसा सेट है। बराबर है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम डीटेक्स कमांड लिखते हैं ना। डीटेक्स कमांड लिखते हैं तो जब वो पूछता है कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ है तो स्क्रीन पे कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए, है ना। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक किया वो पूछेगा हाइट कितना है। अब ये हाइट का जो प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे 0.2 अपन लिखते हैं, जैसे मैं अभी 0.2 लिखता हूँ तो दैट इज ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये 0.2 है ना, तो ये ओके है इसके, है ना। और रोटेशन एंगल जो है बेसिकली, कहाँ गया मेरा वो, टेक्स्ट फिर से एक बार कमांड लेते हैं, डिटेक्स्ट, है ना, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम उसको रिपीट कर सकता हूँ, मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। वो कमांड है, मैं जितने बार उसको यूज करूंगा उतने बार वो आएगा। तो मैं स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद में हाइट पूछ रहा है तो 0.2 लिखता हूँ, और रोटेशन एंगल मेरा हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बराबर है। जब मैं ये सब चीज क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा नाम लिखने का तरीका सब यहाँ पे आ जाता है, स्क्रीन ब्लिंक हो जाती है। सो आई कैन राइट डाउन एनीथिंग, ड्रॉ, है ना, द प्रोजेक्शन। तो ये टेक्स्ट कमांड, ये बेसिक कमांड है ना। आई होप यू आर एम आई ऑडिबल टू एवरीवन। कोई एक रिस्पॉन्ड कीजिए यस करके, स्क्रीन भी दिख रही है आपको? यस सर। हाँ चलो, वेरी गुड, ओके। तो Yes. जैसे मैंने लिखा है इसके ऊपर, अभी मैं अगर इसको मैं एस्केप करता हूँ तो ये मेरा पूरा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बाहर क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ पे लिखने के बाद में आपको एक बार बाहर क्लिक करना है। अभी मैं एस्केप करूंगा तो ये मेरा टेक्स्ट एज इट इज वैसा ही वैसा रहेगा, है ना। तो ये एक बेसिकली स्टार्टिंग कमांड है। आपको जब कभी भी आप ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे तो आपको ये करना ही है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। बराबर है। और कभी कभी का ऐसा हो जाता है आपका वाला कि आपका एरो बड़ा बनता है, डायमेंशंस नहीं आते हैं, तो उसके लिए डी सेटिंग है ना, ड्राफ्ट सेटिंग है। लेकिन रेयरली मेरे ख्याल से अगर आपका सब सिस्टम आप 15 मिनट पहले आते हो अपने हॉल में और सब चीज़ें करके देखते हो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरा यही आपसे सजेशंस रहेगा कि whenever you are having examinations that may be end semester or CAE, go and occupy your space before 15 minutes of the examination। और ये सब कमांड करके अपना स्क्रीन सेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अभी, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक टूल बार है, बराबर है, ये टूल बार है, इसमें लाइन है, सब चीजें है हमारे पास। पॉलीगॉन, जो हमको यूज होने वाली सबसे ज्यादा कमांड है कौन सी है? पॉइंट हम यूज करते हैं, लाइन हम यूज करते हैं, और पॉलीगॉन कमांड यूज कर रहे हैं फिलहाल। आर्क भी यूज करेंगे, रेक्टेंगल जब हम सर्कल ये करते हैं, जब हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हमने सर्कल का प्रॉब्लम लिया था, बराबर है। ये सर्कल है, इससे भी आप डायरेक्टली सर्कल यूज कर सकते हैं। स्प्लाइन है ना, और इलिप्स भी है हमारे पास में। तो जैसा हमारा जरूरत है बेटा वैसा हमको यूज करना है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सर हमको तो पॉलीगॉन ड्रॉ करना नहीं आता है। ये देखो ये हैंड्स ऑन है ना, ये सॉफ्टवेयर है, जितना आप इसको छेड़ोगे उतना आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा होगी। मैं बोल रहा था आपको कि आपको अगर सब चीजें ड्रॉ करना आता है तो आपके लिए बहुत सिंपल है हर चीज। अगर आपको ये कमांड्स ही नहीं आती है तो फिर आप कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लाइन सिलेक्ट करते हैं ना, कोई भी ड्रॉ करने से लिए, है ना। तो मैंने एक लाइन सिलेक्ट किया, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब बहुत से लोगों का क्या होता है, क्लिक किया, एस्केप किया। बहुत से लोगों का क्या होता है कि लाइन ड्रॉ करने के बाद में किसी की आड़ी लाइन आ रही है, किसी के ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है। तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्थो कमांड में क्लिक करने के बाद में, जो ऑर्थो है ना, तो इससे आप लाइन जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि एक तो हॉरिजॉन्टल वो 90 डिग्री बनेगा, इंक्लाइन नहीं बनेगा। और अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, बराबर है। तो ये सब चीजें है, आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना है एग्जामिनेशंस में, तब जाके आपका पूरा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा, नहीं तो आप बनाते ही रहेंगे एग्जाम में, बराबर है। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो देखो मैंने सिलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए क्या किया, फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से सिर्फ माउस खींचा है,
तो ये बेटा ये जो चीजें है ना, ये खींचना कैसा, ये कोई पढ़ाएगा नहीं आपको, है ना। ये सब चीजें आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर आपको खुद ही को प्रैक्टिस करना है ना। अब डिलीट कमांड से, है ना। अब ये मैंने कर लिया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फिर से डिटेक्ट कमांड लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ, बराबर है। स्पेसिफाई हाइट 0.2 कर लेता हूँ, और रोटेशन एंगल मेरा 0 है, बराबर। अगर रोटेशन एंगल मेरा कुछ भी गलत हो जाता है ना, तो क्या होगा पता है, वो जो लाइन आप लिख रहे हैं ना, वो इंक्लाइन हो जाएगी यार, ऊपर नीचे हो जाएगी, है ना। तो फिर मैं एक्स लिखता हूँ यहाँ पे, मैं y लिखता हूँ, और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, तो यहाँ पे मेरे को फ्रंट व्यू मिलेगा, है ना। कैपिटल में लिखो सब, है ना। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यहाँ पे मेरे को टॉप व्यू मिलेगा। उसके बाद में मैं आपका अपना नाम लिखता हूँ। तो ये स्टेप तो हम पहली बार से करते आ रहे हैं, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत होना ही, इंटर GH से ही नागपुर। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम है। अभी देखो मैंने बाहर क्लिक किया तब जाके, अगर मैं इसी में करके एक्सकेप कर देता तो ये पूरा चला जाता। तो चला जाने के बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है। आपको फिर से डिटेक्ट कमांड यूज करना है और ये करना है। अब देखिए, अगर अभी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे चला गया, लेकिन आपको देखो यहाँ पे रोटेशन एंगल बोल रहा है, तो आप कितना भी कमांड करोगे कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जब तक आप एस्केप, जैसे मैं अभी एस्केप बटन दबा रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख के कॉर्नर में कमांड लिख के आया है, कमांड। तो ये जब तक कमांड नहीं आता है तब तक आपके कुछ भी कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगी। मार्क माय वर्ड, रिमेंबर माय वर्ड, जब तक यहाँ पे कमांड नहीं लिख के आएगा, यहाँ पे कुछ टाइप करना नहीं आएगा, तब तक आपका कुछ भी नहीं आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया बेटा? एनीवन रिप्लाई? यस सर। चलो सभी को समझ में आ रहा है? कितने बच्चे ज्वाइन किए अभी तक देखते हैं? 37, मतलब अभी भी 23 से 25 बच्चे अभी भी सोए हुए हैं। चलो ठीक है, उनको सीखना ही नहीं है तो क्या करेंगे, हम भी कितना मेहनत करें आपके पीछे। ठीक है, हो गया, ये सब हो गया। अब इसके बाद में आता है हमारे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम आता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम आता है, सॉलिड आता है, सेक्शन आएगा, और क्या बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू आएगा, ये सब चीजें आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सभी जगह कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ड्रॉ क्या करना है हमें, एक तो स्क्वायर ड्रॉ करना है, बराबर है, एक तो सर्कल ड्रॉ करना है, एक तो पेंटागन ड्रॉ करना है, एक तो हेक्सागन ड्रॉ करना है, एक तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसके बगैर कुछ है क्या और? कुछ भी नहीं है। या एलिप्स होगा जैसे बनेगा, इसके बगैर हमें कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है ना। तो हमारा जो चीज बनता है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब HP में जो हम बनाते हैं, चाहे वो पॉइंट रहे, लाइन रहे, सर्कल रहे, पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, ये हमारा ट्रू शेप बनता है यहाँ पे, बराबर है। तो अगर मेरे को फॉर एग्जांपल स्क्वायर बनाना है, तो कोई लड़के क्या करते हैं, मैंने देखा एग्जामिनेशन में, ये क्लिक करते हैं लाइन के ऊपर, और वहां जाने के बाद में ऐसा एक पॉइंट खींचेंगे, है ना, फिर नीचे खींचेंगे, फिर नीचे खींचेंगे, और फिर ऐसा करके, है ना, एक्सकेप कर देंगे। ये हो गया रेक्टेंगल और स्क्वायर जो भी है डायमेंशन। लेकिन ये बेटा ये गलत तरीका है, ठीक है। आपको जब कभी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल छोड़ो, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे जो स्केचेस बनाना है बेसिकली, तो आपको जो यूज करना पड़ेगा वो कमांड है पॉलीगॉन। कौन सा कमांड है? पॉलीगॉन। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पॉलीगॉन। देखो, तो जैसे ही मैं पॉलीगॉन के ऊपर, अभी मैं ऑर्थो जो कमांड है ना उसको अनक्लिक कर देता हूँ, तो ये जो है ना ऑर्थो, ओ स्नैप, ग्रिड, ये, और यहाँ पे मैंने एडाप्टिव ग्रुप बंद करके नहीं रखा है ना, तो ग्रिड में जाने के बाद में मैं इसको एडाप्टिव ग्रिड बंद कर देता हूँ। ओके, तो स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, ओ स्नैप, है ना, ये जो चीजें है ना मेरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को हमेशा पूरे डायमेंशंस के लिए हेल्प करेगा। जब मेरे को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा तो मेरे को ऑर्थो काम में आएगा, है ना। जब मेरे को किसी चीज को लोकेट करना है तो वो स्नैप काम में आएगा, है ना। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको करते रहना है, चेक करते रहना है। जब आपको कोई डायमेंशंस परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है ना, रेक्टेंगल नहीं आ रहा है ना, तो ये आपको करना है। अभी देखो हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन तो मेरे ख्याल से सबको ड्रॉ करना आता है ना। जैसे मैं लाइन को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, है ना, अगर मान के चलो कि मुझे 100 mm की लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं देखो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे जूम करता हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से मेरे को 100 mm, तो 100 mm मतलब कितना, 1 AutoCAD यूनिट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 3 and 3.75। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमको हमारा कॉन्सेप्ट पता है। मैंने पहला पॉइंट क्लिक किया, देखो अभी मैं जा रहा हूँ 1 AutoCAD, तो 0.75 हो गया, मतलब
ये हो गया 75 mm की लाइन, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखो अभी 1 आया है, तो 1 ऑटोकैड यूनिट, है ना। तो ये 1 ऑटोकैड यूनिट की एक लाइन हो गई, और मैं क्लिक करने के बाद में एस्केप कर रहा हूँ। तो देखिए ये हो गया 1 ऑटोकैड यूनिट की लाइन, है ना। तो ये 1 ऑटोकैड यूनिट हो गया। अब मैं 200 mm दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर से मेरे को 2 ऑटोकैड यूनिट निकालना पड़ेगा। मैं 125 mm की लाइन दूंगा तो 1.25 ऑटोकैड यूनिट निकालना पड़ेगा। तो ये जो है ना मेरा यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें बेसिक्स ऑफ ऑटोकैड यूनिट है, वो एक बार देख लेना, और ये आना भी चाहिए, समझ। अब ये हो गया। अब मेरे को समझ के चलिए कि ये लाइन हो गया। अब ये लाइन को मेरे को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशन देना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको और अच्छा दिखने के लिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 2 पॉइंट निकालूंगा। तो पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा पॉइंट में, है ना, और पॉइंट को क्लिक किया। अब जैसे मैंने पॉइंट को क्लिक किया, अब देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। देखो ये जो येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, ये होता है स्नैपिंग, है ना। अगर मैं ये देखो ओ स्नैप बंद कर देता हूँ ना, तो ये मेरे को बताएगा ही नहीं क्या है, कुछ है करके। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आएगा कि ये मेरा पॉइंट बराबर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ही ओ स्नैप को क्लिक करता हूँ ना, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को, तो ये मेरे को बता देगा कि यार नहीं है, अब देखो ये आपका पॉइंट है यहाँ पे। देखिए ये बता दिया उसने, है ना, बॉक्स करके। तो मेरे को समझ में आ गया मेरा यहाँ पे पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा पहला पॉइंट मिल गया। फिर से मैं आ गया हूँगा यहाँ पे, देखो दूसरा पॉइंट, तो ये मेरा हो गया लाइन, है ना। अब लाइन है तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो पॉइंट सिलेक्टेड है, तो मैं जितने बार क्लिक करूंगा ना बेटा, ये सिलेक्टेड होते रहेगा। तो ये कभी भी गलती मत करना, आप लोग क्या करते हो मल्टीपल टाइम उसको क्लिक करते हो। तो क्या करना, सिंपल 2 पॉइंट मतलब आपने क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है तो एक्स के बटन दबा देना। अब हो गया। अब मैं कितना भी करूंगा तो नहीं होगा। अब ये चीज को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा, बराबर है। तो ये हो गया। अब ये मेरा एक लाइन हो गया जो 100 mm की लाइन है। अब मेरे को इसको नाम देना है PQ, मान के चलो। तो मैं बोला था आपको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कमांड दिखना चाहिए। जब तक आपके कमांड नहीं दिखेंगे ना, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप कितना भी कमांड दबाते रहिए, घुमाते रहिए, कैसे भी करते रहिए। तो मैं फिर से कमांड लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को सब कमांड पता है, मेरे को लर्न है। तो इस वजह से मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब चीजें रिपीट कर सकता हूँ। तो डिटेक्ट कर दिया, एक कोई भी स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने मेरे को हाइट पूछा, मैं बोला 0.2 है ना। अगर मेरा स्केच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं 0.1 कर दूंगा, उससे थोड़ा छोटा दिखेगा मेरा टेक्स्ट जो है। और रोटेशन एंगल में हमेशा 0, एंटर। अब देखिए यहाँ पे ब्लिंक होगा कुछ, तो भी आया। तो अभी ये मैं लिख रहा हूँ, मेरा लाइन है P और ये लाइन है मेरा Q। अब इसका डायमेंशंस मेरे को नहीं पता, देखो मैं Q कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, और मैं देखो DSS लिखा, अगर मैं बाहर क्लिक नहीं करता हूँ और एस्केप कर देता हूँ, तो ये पूरा चला जाएगा। देखिए एस्केप चला गया। तो मैंने आपको बोला था जब भी लिखने के बाद में, वो टेक्स्ट लिखने के बाद में बाहर क्लिक कर देना। अभी एस्केप हो गया, तो ये मेरी लाइन हो गई PQ, है ना। अब मेरे को इसको डायमेंशंस देना है। डायमेंशंस कैसे दूंगा मैं, मान के चलिए अब मेरे को इस लाइन को थोड़ा सा डायमेंशन देना, तो मैं डायमेंशंस में जाता हूँ हमेशा, लाइन में क्लिक करता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट स्नैपिंग ऑन होने की वजह से मेरे को सर्कल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अपने आप ही आ गया हो, मतलब मैं जस्ट स्क्रॉल किया तो उसने लोकेट कर लिया यहाँ। और जैसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ, देखिए ये मेरी बन गई 1 ऑटोकैड की लाइन। समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरीके से डायमेंशंस आपको देना। फिर आप कैसे भी डायमेंशंस दे सकते हो। आपको इंक्लाइन देना है, इंक्लाइन ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एक ये लाइन निकाला मैंने, ये कितने ऑटोकैड की है, 150 mm की लाइन है। चलो हो गया, एस्केप। फिर से एक लाइन लेता हूँ, यहाँ से इंक्लाइन लाइन निकालता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से मैं कुछ इंक्लाइन ले लेता हूँ। मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, ठीक है, मेरे को भी ये नहीं पता है। देखो ये 45 डिग्री बता रहा है, तो अब मेरे को मान के चलिए कि मेरे को इस लाइन को भी 1.5 ऑटोकैड यूनिट निकालना है, मतलब 150 mm निकालना है, और 45 रोटेशन एंगल होना चाहिए। तो देखिए आप स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा है 1.76, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि 1.5 ऑटोकैड यूनिट, मतलब 150 mm की लाइन होगी, और मैं अपने कीबोर्ड पे टैब जैसे क्लिक करता हूँ तो ये एंगल पूछेगा, बराबर है। और एंगल अगर मैं मान के चलता हूँ कि 50 डिग्री चाहिए मेरे को, तो मैंने 50 लिख लिया कीबोर्ड से। और जैसे मैं एंटर कर देता हूँ, ये देखिए, और फिर मैं एस्केप कर देता हूँ, ये मेरी 2 लाइन बन के रेडी है। तो ये मेरा 1 पॉइंट ऑटोकैड इसका हो जाएगा। अब देखिए वो स्नैप चालू है ना, सॉरी स्नैपिंग चालू है ना, इस वजह से ये लोकेट नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्नैपिंग बंद कर देता हूँ। तो अब देखो मैं लाइन के ऊपर भी जा सकता हूँ सिलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए मैंने बोला था स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, स्नैप, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अल्टरनेटली बाय अल्टरनेटली यूज करते रहना पड़ेगा, बराबर है।
और ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अब क्या हुआ, मैंने 2 लाइन निकाला, ये भी 1.5 ऑटोकैड की है, ये भी 1 पॉइंट है और मेरे को इसको डायमेंशंस देना है। तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशंस में जाऊंगा, अलाइन क्लिक करूंगा, है ना। अब ये देखिए ये पॉइंट हो गया क्योंकि मेरा ओ स्नैप चालू है ना। तो देखो ओ स्नैप चालू होने की वजह से उसने एक पॉइंट लोकेट कर लिया, ठीक है, यही मेरा पॉइंट है। फिर यहाँ जाकर दूसरा भी पॉइंट लोकेट करेगा, देखो कर लिया। अब नीचे जैसे ही खींचूंगा मैं इसको, देखिए 1.5 ऑटोकैड हो गया ये डायमेंशंस। फिर से मैं डायमेंशंस में जाऊंगा, फिर से अलाइन में क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो फिर से एक पॉइंट लोकेट कर लिया, फिर ऊपर जाऊंगा, है ना, फिर से एक पॉइंट लोकेट कर लिया, देखिए ऊपर लेके जाता हूं मैं, ये मेरा फिर से 1.5 ऑटोकैड की लाइन हो गई। उसके बाद में मेरे को ये दोनों के लाइन के बीच का एंगल देना है, तो मैं क्या करूँगा, डायमेंशंस में जाना है मेरे को, डायमेंशंस में एंगुलर जो होता है एंगुलर को सिलेक्ट करूंगा। तो ये लाइन है छोटी वाली और ये वाली लाइन है, तो दोनों की लाइन को सिलेक्ट करूंगा। देखिए मेरा 50 डिग्री की इधर लेके जाता हूँ, आपको दिखना चाहिए, ठीक है, 50 डिग्री दोनों का एंगल है। और यही मैंने किससे कमांड से यूज किया था, वो वाले जिससे मैंने अपने आप को मतलब लाइन सिलेक्ट करने के बाद में अपने आप दोनों का बीच का एंगल मैंने डिफाइन किया था। ये डायमेंशन आपके वेरीफाई हो गए और यही तो आपको एग्जामिनेशन में करना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, यही आपको यहाँ फंस जाते हैं आप। आपको डायमेंशन देना नहीं आता, आपको नेमिंग देना नहीं आता, आपको एंगल देना नहीं आता, आपको यूनिट नहीं समझ में आते कि अरे यार मेरा 150 mm जा रहा है कि ये 1.5 क्या है ना। ये होने के बाद में आप इसको क्या कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि मैंने बोला था डायमेंशन जितने भी है उसको सियान कलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से जाइए, फिर बाय लेयर में जाइए और यहाँ पे सियान कलर है, देखिए एस्केप हो गया, कितना खूबसूरत स्केच दिख रहा है ना। तो बस यही चीजें बेटा आपने को एग्जामिनेशन में करना और इसी की प्रैक्टिस है, बाकी सब तो कॉन्सेप्ट है ना। तो आई होप आपको ये लाइन वगैरह ड्रॉ करना समझ में आ गया। यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द, और कोई एक अनम्यूट करके बताइए अगर समझ में आया होगा तो। यस सर। यस सर। आया सभी, अभी कोई डाउट है इसमें सभी में, कैसे लाइन करते हैं अपन, कैसे डायमेंशंस देते हैं, है ना, ये सब चीजें के लिए क्लियर है सबको। यस अभी एक और चीज बताता हूँ मैं, है ना। जैसे मैंने अगर ऑर्थो पे क्लिक किया तो ऑर्थो मेरे को प्रोजेक्शन लाइन के लिए मतलब परपेंडिकुलर की यूज होता है। देखो अभी ये वो स्मूथली घूम रहा है ना। तो स्मूथली घूमना है मतलब मेरे का स्नैपिंग मैंने बंद कर दिया, तो स्नैप हमेशा मैं चालू करके रखता हूँ, ठीक है। अब देखता मैं इंक्लाइन लाइन नहीं निकाल सकता इससे, मैं एक तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल, है ना, जैसे देखिए मैं इस लाइन सेलेक्ट करता हूँ, मेरा ऑर्थो चालू है, तो मैं यहाँ से इंक्लाइन नहीं जा सकता। देखो एक तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा, है ना, या मैं नीचे आऊंगा, एस्केप, इंक्लाइन नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि मेरा ऑर्थो चालू है। अगर मैं ऑर्थो को अनक्लिक करता हूँ तो देखिए मैं लाइन कैसे भी निकाल सकता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, ये हो गई एक लाइन, एस्केप, फिर से एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इंक्लाइन लाइन निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ से मेरे को निकालना है इधर, तो देखो ये मैं निकाल सकता हूँ। तो अब मैं कितना भी डायमेंशन, जो पहला जो आपको दिख रहा है ब्लू में जो नंबर दिख रहा है वो उसका डायमेंशन है। अगर मैं 1 ऑटोकैड लिखता हूँ तो ये 100 mm की लाइन हो जाएंगी, और टैब जैसे मैं प्रेस करता हूँ, बराबर है, तो ये मेरे को एंगल पूछेगा, मतलब 2 लाइन के बीच का एंगल कितना है। तो अगर मैं 45 लिखता हूँ तो ये 45 हो गया, देन प्रेस एस्केप, तो ये हो गया लाइन और ये दोनों के बीच का एंगल हो गया 45। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी देखो मेरा स्क्रीन ऐसा कहीं तो भी आ रहा है, तो मेरे को बीच में लाना है, तो क्या करूंगा मैं, जेड एंटर ए, ठीक है बेटा, क्लियर है, क्लियर है ये। यस सर। हाँ चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मेरे को डिलीट करना है तो कैसे करूंगा, मैं यहाँ से देखो यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा नीचे वाला ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स भी मेरा चला गया, अरे मेरे को दिक्कत नहीं है, चला जाएगा, मेरे पास तो कमांड है ना, मेरे को कमांड सब पता है। डीटेक्स स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, 0.25 स्पेसिंग और रोटेशन एंगल 0 लिख देता हूँ। मैं फिर से एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं सब काम कर सकता हूँ अगर मेरे को सब कमांड बराबर याद है। हो गया, देन प्रेस एस्केप। ये हो गया लाइन के बारे में, एंगुलर डायमेंशंस कैसे देते हैं, एंगल्स वगैरह देते कैसे देते हैं वो इसके बारे में, ठीक है। अब मेरे को सबसे बड़ा चीज जो आपको समझ में आता है ना, आपको पॉलीगॉन नहीं निकालना था। तो पॉलीगॉन मतलब स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इसी से बनेगा, बराबर है, चाहे वो आपका कॉर्नर पे रहे रेस्टिंग, चाहे वो आपका एज पे रेस्टिंग रहे, बराबर है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड ले लो या स्क्वायर प्लेन ले लो, तो मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं अभी भी फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करके देखोगे आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आप लर्न नहीं कर सकते बेटा सब चीजें, समझ में आ रहा है। तो ये वीडियो को बिल्कुल देखना, 10 बार देखना, है ना।
अब मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि मेरे को नंबर ऑफ साइड्स कितने भाई पॉलीगॉन के। अब मेरे को स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में कितने साइड रहते हैं, 4 साइड रहते हैं। तो मैं लिखूंगा, ये देखो पहले से 4 लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिर से अपने कीबोर्ड पे जाके 4 लिखूंगा। जैसे ही 4 मैंने लिखा, मैं फिर से एंटर दबाऊंगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये पूछेगा कि स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगॉन क्या है, कुछ है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा, जो अपना कीबोर्ड रहता है ना, इसमें जो बिलो बटन अपन करते हैं, कर्सर जो रहता है ना बिलो, तो मैं नीचे की बटन दबाऊंगा। देखो जैसे मैंने कीबोर्ड की नीचे की बटन दबाया, वो पूछ रहा एज, फिर से एक बार और दबाऊंगा। तो जब तक आपका यहाँ पे डॉट नहीं आता, देखो एज और डॉट नहीं आता, ये सिलेक्टेड नहीं होता। जैसे ही ये आ गया एज और डॉट, आप एंटर कर देना, हो गया आपका वाला। अब क्या करना है, आपको जहाँ से ड्रॉ करना है, मेरे को ये मान के चलो यहाँ से करना है, और लेटेस्ट से मेरे को बनाना है 1 AutoCAD यूनिट, मतलब 100 mm का स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं खींच रहा हूँ बस, है ना। अब देखिए तो ये आया, देखिए इसके बीच में। सो मेरा एक डायमेंशन देखिए 1 AutoCAD यूनिट आ गया। और एंगल को मेरे को छेड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे को जैसा है वैसा ही सही है। क्योंकि मेरे को स्क्वायर जो है मेरा प्लेन रहेगा, प्रिज्म रहेगा, पिरामिड रहेगा, वो मेरे को ऑन द साइड रेस्टिंग चाहिए। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा एज है, बराबर है। तो ये 1 AutoCAD यूनिट हो गया, ठीक है। क्लिक कर दिया, हो गया। अब डायमेंशन में जाके फिर से एक बार चेक करना, अलाइन जाना। तो आपको जब कमांड पता है तो आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, और डायमेंशन देते रहना कभी भी। इससे क्या होगा, आपको उसका कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो निकाला वो सही है। अब देखो ये स्क्वायर प्रिज्म और स्क्वायर पिरामिड का बेस हो गया, बराबर है। अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये स्क्वायर प्लेन है, तो ये स्क्वायर प्लेन हो गया, है ना। अगर मेरे को इसको स्क्वायर पिरामिड बोलना है, तो मैं ये स्क्वायर बना लिया। अब एक लाइन ले लूंगा इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूंगा, बराबर है। देन प्रेस एस्केप, फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूंगा। तो ये जो मेरा सेंटर बनता है, ये होता है एपेक्स और वर्टेक्स, है ना। और जो लाइन दिख रही है आपको, ये होती है उसकी स्लैंट एजेस। तो ये एक हो गया स्क्वायर ड्रॉ करने का है, बराबर है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉलीगॉन में सिलेक्ट करेंगे। अब वो पूछेगा कि नंबर ऑफ साइड कितना है, तो स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो मैंने 4 साइड किया, एंटर दबाया। फिर जो कीबोर्ड की बिलो बटन होती है उसमें आया, फिर से 2 बार बिलो बटन दबाया, इसमें एज लिख के आया है। एज आने के बाद में मैंने एंटर दबाया। अब मैं यहाँ से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, तो ये मेरे को अभी मान के चलो कि मेरे को 150 mm का चाहिए, या 125 mm का स्क्वायर चाहिए। तो देखो मैंने 125 mm 1.25 AutoCAD यूनिट अपने आप आया है। फिर मैं लिख सकता हूँ, अगर मेरे को 150 चाहिए तो मैं डायरेक्ट 1.5 AutoCAD यूनिट लिखता हूँ और डायरेक्ट प्लेस एंटर करता हूँ। तो ये मेरा जो हो गया ना 150 mm का स्क्वायर हो गया। तो मैं यहाँ पे अलाइन में जाता हूँ, डायमेंशन दिखा देता हूँ आपको कितना है। तो प्रेस एस्केप, फिर से डायमेंशन में जाइए, अलाइन में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। देखो 1.5 AutoCAD यूनिट, फिर से डायमेंशन में जाइए, अलाइन में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए। ये हो गया 150 बाय 150 का स्क्वायर, बराबर है। ये क्लियर हो गया। अगर मेरे को बोला है कि कॉर्नर पे मेरे को रेस्ट करना है भाई, मतलब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मेरा वाला कॉर्नर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर से पॉलीगॉन में जाऊंगा। अब मेरा स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइड है, ओके, वही स्टेप रिपीट, डबल क्लिक, बिलो बटन, एज आया, एंटर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मेरे को कॉर्नर चाहिए, तो मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले कैसा आता है, ऐसा आएगा, है ना। अरे इसको घुमा दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हो, तो घुमाते चलिए इसको, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब मेरे को क्या हो गया कि मेरा एक रोम्बस आया, तो घुमाने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा कॉर्नर है। इसमें डायमेंशन पूछ रहा है, तो 1 AutoCAD यूनिट लिख लिया और एंटर दबाता हूँ। तो देखिए ये 100 mm का मेरा स्क्वायर हो गया, बराबर है। चेक कर सकते हैं आप, अलाइन 100 mm का। तो मैंने कैसा किया वो भी बताता हूँ, ये वाला, है ना, और ये वाला। देखिए 100 mm का मेरा स्क्वायर, और जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉर्नर है, बराबर है। ऐसे ही पेंटागन रहेगा, ऐसे ही हेक्सागन बनेगा, बराबर है। अब देखिए फिर से कैसे बनाता हूँ। लाइन पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ साइड 4 है, एंटर दबाया, 2 बार बिलो बटन दबाया, एज आया, एंटर किया। अब क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे देखिए अभी मेरे को कॉर्नर चाहिए ना, तो मैंने जैसे ही इसका पॉइंट सिलेक्ट किया, बराबर है, मतलब मेरा एक पहला पॉइंट हो गया। अब देखो मैं घुमा रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं, है ना। घड़ी का जो क्लॉक रहता है ना, वैसे घुमा रहा हूँ, देखो
और जैसे मैं पूरा क्लॉकवाइज घुमा लिया, अब देखो आया ये, है ना बराबर। अब इसकी जगह मैं 150 लिख लूँ या 1.5 ऑटोकैड यूनिट लिख लूँ या कितना भी लिख लूँ, तो ये 150 mm का मेरा वाला स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, कॉर्नर है। इसी तरीके से अपन पेंटागन निकाल के देखते हैं ना। तो ये मैं फिर से पॉलीगन सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। पॉलीगन सिलेक्ट करने का, पेंटागन में कितना साइड होता है, कोई बताएगा मेरे को, कितने साइड होते हैं पेंटागन में? 5 है ना। तो मैं देखो अभी नंबर ऑफ साइड बोला है तो 5 है ना। डबल एंटर, एंटर, उसके बाद में डबल बिलो बटन एज के ऊपर आया, एंटर किया। अब देखो मैं पेंटागन बनाता हूँ। तो ये जैसे मान के चलो कि यहाँ से मेरे को 100 mm का या कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, यहाँ से क्लिक किया। अब देखिए आया, जिसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक लाइन है, एज है, और राइट हैंड साइड क्या है, कॉर्नर है। सीधा बन के रेडी हो गया। अब मान के चलिए कि मेरे को 100 mm का चाहिए, 125 mm का चाहिए पेंटागन, तो मैं सिंपल लिखूंगा यहाँ पे 0.75 की जगह कीबोर्ड से 1.25, ओके, एंटर। तो ये मेरा हो गया बेटा पेंटागन बन के रेडी। ये कितने भी डायमेंशन का हो सकता है। जैसे हमने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पेंटागन ड्रॉ किया था, जिसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा आता है, ये कॉन्सेप्ट है ना। जैसे एग्जाम में दिया रहेगा वैसे आपको ड्रॉ करना है। राइट हैंड साइड कॉर्नर है, बराबर है। अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा पॉलीगॉन में, है ना, और नंबर ऑफ साइड मेरा 5 है, एंटर, बिलो बटन, डबल एज, एंटर सिलेक्ट, है ना, इधर निकालता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसको कैसे घुमाना है, कैसा घुमाना है, क्लॉकवाइज, है ना। देखो तो ये हो गया मेरा वाला। अब मेरे को इसको कॉर्नर पे रेस्ट करना है, तो मैं घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, है ना। तो देखिए ये हो गया, है ना। आया लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर आया है और राइट हैंड साइड में एज। अगर मेरे को ये 1.25 mm का चाहिए, मतलब 1.5 का, मतलब 150 mm का, तो मैं एंटर 1.5 लिया, एंटर कर दिया। अब देखो ये ऊपर चला गया, नो प्रॉब्लम, जेड एंटर, ए एंटर, आया मेरा, देखो ये 150 mm का। फिर मैं डायमेंशन दे सकता हूँ, डायमेंशन में जाके लीनियर, है ना। अब ये पकड़ता नहीं है तो क्या करेंगे, स्नैपिंग बंद करके रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पकड़ लिया, देखिए 1.5 मतलब 150 mm का ये पेंटागन बन गया, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें कॉर्नर चाहिए, जैसे प्रॉब्लम दिया रहेगा वैसे। और अगर लाइन बोल चाहिए तो फिर इस तरीके से प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। अगर अब मेरे को बताइए कि मेरे को इसका सेंटर निकालना है, सेंटर कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लाइन ले लूँगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, तो ये 90 डिग्री मेरे को चाहिए कैसा भी है, तो इसके मिड पॉइंट पे वो आ जाएगा अपने आप, बराबर है। तो ये देखिए इसका मिड पॉइंट आ गया, है ना। और यहाँ से मैं भी, या फिर यहाँ से, और यहाँ से आप ले सकते हो, तो यहाँ पे मतलब क्रॉस कर सकते हो। जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो गया एस्केप, है ना। तो ये आपकी बेटा से प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको कैसा ड्रॉ करना है एस्केप। तो ये हो गया इसका पॉलीपेंटागन का मिड पॉइंट, राइट। तो कंट्रोल जेड करते जाओगे तो ये सब चला जाएगा, बराबर है। अब ये हो गया पेंटागन, सबको समझ में आ गया कैसा ड्रॉ करते हैं, कॉर्नर के ऊपर और रेस्टिंग और साइड के ऊपर रेस्टिंग, समझ में आ गया बेटा। स्क्वायर समझ में आ गया, कैसे कॉर्नर पे रेस्ट करते हैं, कैसे एज पे रेस्ट करते हैं, समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड, राइट। अभी देखिए हेक्सागन ड्रॉ करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, है ना। सिलेक्ट कर दिया, डिलीट, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट, बराबर है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत कॉमन बेसिक ये है, स्टेप्स है, यही आपको यूज होते रहेगा मल्टीपल टाइम्स, है ना। और जितने बार आप इसका यूज करेंगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी। अब मैं पॉलीगॉन में जाता हूँ, नंबर ऑफ साइड कितना होता है हेक्सागन में, 6। हाँ, तो मैं 6 लिखता हूँ, ठीक है। देन डबल प्रेस एंटर, एंटर जैसे किया, मैं बिलो बटन दबाया, एज के ऊपर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मान के चलिए मेरा 100 mm का मेरे को हेक्सागन निकालना है, जिसके दोनों साइड में साइड, ठीक है। तो चलो ये हो गया, ये 1.25 मतलब 125 mm का ये हो गया हेक्सागन, तो मैं 1 ऑटोकैड ले, ठीक है, एंटर। तो हो गया मेरा वाला, हो गया हेक्सागन बन के रेडी। अगर मेरे को इसको कॉर्नर पे निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कॉर्नर होना चाहिए, तो क्या करूंगा, फिर से पॉलीगॉन में जाऊंगा, नंबर ऑफ साइड इज 6, एंटर, डबल क्लिक बिलो बटन एज, है ना। और फिर मैं यहाँ पे कैसे घुमाऊंगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, देखिए। तो मैं घुमा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो अभी ये थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, तो घुमाते रहना इसको, है ना।
क्लॉकवाइज में। तो ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, थोड़ा सा इसको मैं कंट्रोल जेड करके डिलीट कर देता हूँ, है ना। फिर से पॉलीगॉन में जाता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कमांड पता है ना, तो ये से आपको भी पता है, तो आप कितने भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को कॉर्नर पे रेस्ट करना है ना, हेक्सागोन को। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉर्नर होना चाहिए। तो मैं देखो क्लॉकवाइज ही घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये अगर आपका नहीं आ रहा तो आड़ा टेढ़ा आ रहा होगा, तो एक बार फिर से इसको घुमाते जाइए। मेरा माउस थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है। वही कमांड यूज करूंगा मैं, पॉलीगॉन 6 बिलो बटन एज, है ना, यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को कॉर्नर पे सिलेक्ट करना है, तो ये एज वाला हो गया। बटन दब रही है मेरे हाथ से। 6 बिलो बटन एज, है ना, एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। माउस भी नहीं घूम रहा उतने स्पीड से मेरे हाथ से। फिर से एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। पॉलीगॉन में देखो मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, नहीं, वही इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ बस। एज, है ना, ये मान के चलिए ये पॉइंट है। ये जितना स्मूथ चलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि अभी वीडियो भी चल रहा है ना, इसकी वजह से ये थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, देखिए ये आया दोनों साइड में कॉर्नर कॉर्नर। अब इसको मेरे को 125 mm का चाहिए, तो 1.25। देखिए, तो यही चीज है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। देखिए मैं अभी कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरा वीडियो भी चल रहा है, मेरा माउस भी ये हो रहा है, बराबर है, मेरा माउस भी सब चीजें हो रही है ना। तो इसकी वजह से देखिए अभी दोनों लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर और इसमें भी कॉर्नर आएगा। तो यही आपको सॉलिड में भी आएगा कि कॉर्नर पे रेस्ट बोला है तो कॉर्नर कैसा रहेगा, है ना, एज पे बोला है तो एज कैसा रहेगा, बाकी सब तो स्टेप सेम ही रहेगी, बराबर है, क्लियर है, क्लियर है। और इसको आप डायमेंशन दे सकते हो। अभी देखिए ये सॉलिड को मेरे को क्या करना है, थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में या सॉलिड में आपको इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, है ना, मतलब थोड़ा जाड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बाय लेयर पे, बराबर है। अब यहाँ पे अदर्स में जाएंगे, अदर्स में जाने के बाद लोड में जाएंगे। देखो जो ऑटोकैड 2007 यूज कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा दिक्कत जाएगा। यहाँ पे -2 करके होगा, ये वाला -2.5x, इसको सिलेक्ट करूंगा, ओके, है ना, और ओके। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, है ना, और इसको मैं दे देता हूँ 0.30 एसके। चाहिए -2 आ गया, है ना, क्योंकि मैंने डैश सिलेक्ट किया था, जो आपको अभी एक्सेस के लिए काम में आएगा, है ना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, स्नैप को बंद कर देता हूँ, मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, और इसका डायमेंशन जो मेरे को लेना है 0.30। ये हो रहा है 0.30। थिकनेस नहीं बढ़ रही है इसकी वैल्यू, बढ़ना चाहिए ना। LWT, यहाँ पे जो LWT है ना बेटा, इसको मैंने सिलेक्ट किया था, मतलब लाइन विड्थ जो है ना, लाइन विड्थ को शो किया था। तो ये जनरली आपको 0.30 रखना है ना एग्जाम के लिए। तो अभी ये आपका ये हो गया। जैसे आप कोई भी बना लीजिए। अब मैं बना लेता हूँ एक रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल तो बहुत सिंपल बन जाएगा, है ना। वो जैसे मैंने यहाँ पे स्नैप को क्लिक कर देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, तो ये हो गया 1.5। तो मेरे को इसका विड्थ चाहिए, मान के चलिए 0.5, मतलब 50 mm, और टैप कर देता हूँ, और जो मेरे को लेंथ चाहिए उसका 1। तो ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, बराबर है। तो इसको अगर मेरे को ठीक करना है, तो मैं यहाँ पे 0.30 क्लिक करूँगा। तो ये आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में काम में आएगा ये चीज़, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, है ना, कॉर्नर रेस्टिंग और ये वाला, है ना। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है कि किसी फिगर को कैसे कॉपी किया जाता है और कैसे बेसिकली उसको टिल्ड किया जाता है, बराबर है। क्योंकि ये जो चीज़ें ना आपको यूज होगी यहाँ पे, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्विकली क्या करता हूँ, एक स्क्वायर निकाल लेता हूँ, है ना,
4 स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम ले लेता हूँ, है ना। स्क्वायर पिरामिड 4 हो गया ये। उसके बाद में मेरे को इसका डायमेंशन चाहिए 1, सॉरी ये नहीं, प्रेस एज, है ना। और मैं यहाँ पे एक स्क्वायर निकाल रहा हूँ, कितना 100 mm, वह 125 mm का। चलो ठीक है ना, हो गया। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 0.30, 0.35 हो गया ये, 0.30, ओके। और इसको मैं क्या कर देता हूँ बीच में, क्योंकि ये मेरा स्क्वायर पिरामिड है, तो यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट, और यहाँ से यहाँ पे एक हाफ पॉइंट, ओके। और जो डायमेंशंस आप दे सकते हो, अभी फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अभी मैं इसका प्रोजेक्शन लाइन निकालता हूँ, बराबर है। यहाँ से ये प्रोजेक्शन लाइन, दिस इज फॉर द एग्जाम्पल, ओके। एक प्रोजेक्शन लाइन हो गया, ये दूसरा। तो जब आपको बेटा सब चीज़ें पता रहती है ना, इसको स्नैपिंग बंद कर दीजिए, तो ये अपने आप पकड़ लेगा, है ना। तो देखिए ये अभी दूसरा पॉइंट हो गया, है ना। और यहाँ से मेरा तीसरा प्रोजेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो मेरे को पता है ना। देखो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकंड पॉइंट हो गया प्रोजेक्शन वाला, ये मेरा थर्ड पॉइंट हो गया। मैं फिर से एस्केप की बटन दबा देता हूँ। यहाँ से जो हाइट दिया रहेगा, अपन ने कितना लिया था, जो भी एक्सेस लिया था, मान के चलिए कि यहाँ से वो कितना था, 75 mm था, है ना। और देखो ये अभी देखो, अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये ऐसा आ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, ऑर्थो में क्लिक करेंगे। ऑर्थो में क्लिक करने के बाद ये पूरा 90 डिग्री आएगा। प्रेस एस्केप, है ना। लाइन सिलेक्ट करो, यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करो। ये मान के चलिए मेरा कितना mm का था, 125 mm के एक्सिस थे, तो 1.25, एंटर, ओके। देन प्रेस एस्केप, ओके। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं फिर से एक बार पॉइंट दे देता हूँ, हो गया ये वाला। और मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, और इस लाइन को ज्वाइन कर लेता हूँ। देखो अभी मैं लाइन ज्वाइन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा ऑर्थो चालू है। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्थो पे क्लिक कर दूँगा। ये सब बेटा प्रैक्टिस से आएगा, जितना आपको प्रैक्टिस आएगी, है ना, उतना आपका ये होगा। अभी मैं कुछ डायमेंशन नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को पता है, आपको आता है ये, ठीक है। ये 1, 2 और 3 लाइन मेरी कैसे होना है, सॉरी प्रेस एस्केप। तो यहाँ पे मैंने लाइन नहीं निकाला ना अभी, तो ये मेरा एक से लाइन और ये दूसरा लाइन हो गया, एस्केप। 1, 2 और 3 मेरा क्या होना चाहिए, थोड़ा थिक होना चाहिए, तो मैंने थिक कर दिया इसको, है ना। ये प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड का प्रॉब्लम है, जिसका एज और बेस साइड इन एचपी है ना। और ये जो एक्सिस है ना बेटा, ये सेंट्रल एक्सिस है, मतलब मेरा जो दिखेगा नहीं, तो इसको मैं कर रहा हूँ डैश से इंडिकेट। तो देखिए आप, दिख रहा है ये। अब मेरे को इसको क्या करना है, जो मैं बोलता हूँ कि एक्सिस मेरा 45 डिग्री से बेसिकली इंक्लाइंड है, मतलब 40, मतलब बेस को मैंने बोला था, अगर आपको याद है कि बेस मेरा 45, मतलब 90 माइनस जो एक्सिस का इंक्लिनेशन है वो माइनस करना होता है, अगर आपको याद है। तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइंड है एचपी से, तो मतलब मेरा बेस कितना होगा, 90 माइनस 30, 60 से। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंक्लाइन करना है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बराबर है, सिलेक्ट कर लिया। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ, कहा गया कॉपी, फिगर कॉपी कर लिया, और मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट करने के बाद में मैं इसी लाइन पे करूंगा एक्स वाई के ऊपर, नहीं तो मेरा गलत हो जाएगा, बराबर है। इसको कोइंसाइड करना पड़ेगा मेरे को, बराबर है। तो देखिए अभी ये मेरा कोइंसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैंने कॉपी कर लिया, है ना। तो देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा फिगर को सिलेक्ट करता हूँ, बराबर है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी राइट क्लिक करके मूव, ये जो मूव का ऑप्शन है ना, मूव, इसको क्लिक कर देता। और मूव करने के बाद में मैं इस फिगर को देखिए अभी कैसा नीचे मूव कर रहा हूँ, हो गया मेरा वाला, आ गया एक्स वाई के ऊपर यही वाला फिगर। मतलब मेरी मेहनत बच गई ये पूरा ड्रॉ करने की। अब मेरे को इसको घुमाना है, कितना घुमाना है, एक्सिस को 30 डिग्री घुमाना है एचपी से। तो मैं बेस को, मतलब ये मेरा जो बेस है नीचे वाला, नाम तो नहीं दिया अभी, लास्ट में भी दे सकते हैं, इस बेस को मेरे को घुमाना है 60 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखिए रोटेट कमांड होगा, देखिए रोटेट कमांड है यहाँ पे, रोटेट कमांड पे क्लिक करूंगा। अब वो रोटेट किसके बेसिस पे पूछ रहा है कि कौन सा बेस पॉइंट है, किसके बेसिस पे, किससे पॉइंट पे वो पूरा फिगर टिल्ट होगा। तो मैं हमेशा यहाँ पे अपन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा रोटेट करते हैं। तो मैंने ये क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया देखो ये मेरा घूम रहा है ना।
अब देखिए इसमें एक चीज होगी, अगर मैं डायरेक्टली 60 दबाता हूँ ना तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए रोटेशन एंगल पूछ रहा है, जैसे मैंने 60 किया तो मेरा उल्टा घूमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड आया, फिर से इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। देखो कमांड की आपको टेंशन नहीं रहेगी इसमें। राइट क्लिक करूंगा, रोटेट पे क्लिक करूंगा, बराबर है। उसके बाद में मेरे को पूछ रहा है कौन से पॉइंट पे घुमाना है, मैंने बोला इस पॉइंट पे घुमाना है। अब कितना है तो मैं लिखूंगा -60 डिग्री। तो ये मेरा जो बेस है ना बेटा, ये पूरा मेरा घूम के रेडी हो गया। फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, वो एज इट इज वही प्रोजेक्शन जो हमने क्लास में पढ़ा था, है ना। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालूंगा, यहाँ पे एक हो गया, है ना। फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं प्रोजेक्शन निकालूंगा, ये एक पॉइंट है मेरा, है ना। तो यहाँ से अब मेरे को 90 नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूंगा, ऑर्थो पे क्लिक करूंगा तो मेरा 100% आंख बंद करके वो 90 डिग्री आएगा प्रोजेक्शन, बराबर है। तो मेरे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना था आपको कि मैंने जो रोटेशन एंगल लिया वो मेरा सही है कि नहीं है ना। तो देखिए ये ओरिजेंटल, ये मेरा ओरिजेंटल बराबर है। फिर से इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है। तो ये देखिए, है ना। और क्या बचा था मेरा पॉइंट, अच्छा सेंट्रल एक्सिस बची थी ना, ये वाली प्रोजेक्शन की, ये वाला यहाँ से हो गया। तो मैंने जितना ही बोला था आपको कि सब आपको प्रोजेक्शन जो लाइन रहता है, पॉइंट जो है ना, ये आपको किस में कन्वर्ट करना है, सियान कलर में। ये जो कॉन्सेप्ट ये पहले से सीखते आ रहे हैं तो ये यूज करना है। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ सियान, मतलब मेरे को डाउट नहीं रहेगा अभी। तो मैं बस पॉइंट लोकेट करूंगा। अभी लोकेट करने के लिए यहाँ से पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा ये बेस हो जाएगा, ये एक पहला पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। जब नाम देंगे ना आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी तो मैं जल्दबाजी में थोड़ा सा नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, फिफ्थ, है ना। और ये आपका सेंटर हो जाएगा, बराबर है। एस्केप। तो हम क्या करते हैं, फिर ज्वाइन कर लेते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट बोलता है ना। आउटर पॉइंट जो है हमने स्टेप्स लिखे थे, अगर आपको याद है तो ऑर्थो को अनक्लिक कर देता हूँ, ये वाला। फिर यहाँ से ये वाला ज्वाइन कर लेते हैं, फिर यहाँ से ये वाला ज्वाइन कर लेते हैं, फिर यहाँ से ये वाला ज्वाइन कर लेते हैं, बराबर है, बराबर है। और बेस मेरे को ऊपर उधर से साइड से नहीं दिखेगा, तो बेस को क्या करूंगा मैं, पहले सबसे पहले ये जो लाइन है ना, इसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब सॉलिड इन द सेंस थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, दिखना अच्छा चाहिए ना। ये हो गया मेरा वाला आउटर बाउंड्री ज्वाइन हो गया। अब उसके बाद में ये जो लाइन लिखता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला इसके, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, बेस है ना उधर से दिखेगा नहीं मेरा बेस, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा थिक कर लेता हूँ। लेकिन इसको मैं डैश करके मिनिमेट करूंगा, क्योंकि जो लाइन मेरे को दिखेगी नहीं उसको मेरे को डैश करना है। और फिर क्या करूंगा, एक लाइन ले लूंगा यहाँ से, क्योंकि ये मेरे स्लाइंट एजेस है, तो इसको ज्वाइन कर लूंगा और इसको मैं ठीक कर लूंगा। तो ये बेटा मेरा हो गया प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर पिरामिड का प्रॉब्लम, है ना। अब मेरे को एक चीज बताना था कि जो इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन के लिए मैं क्या करूंगा, डायमेंशन में जाऊंगा, एंगुलर सिलेक्ट करूंगा। आप देखना मैंने बोला था प्रॉब्लम में एक्सिस मेरा इंक्लाइंड है, तो ये इसको सिलेक्ट किया, एक्स वाई को सिलेक्ट किया, देख लेते कितना है। देखो एक्सिस मेरा 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और अगर मैं बेस 60 डिग्री करता हूँ तो ये जो मैं बोल रहा था ना आपको कि इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला है, देखिए ये एक लाइन हो गई एक्स वाई लाइन, और ये हो गया, ये देखिए। ये मैं जब 60 डिग्री बेस को इंक्लाइन करता हूँ तब मेरा एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाता है। अब इतना होने के बाद में, है ना, प्रेस एस्केप, इसको मैं डायमेंशंस को सियान कलर में दे देता हूँ, है ना। अब नेमिंग के लिए क्या करेंगे, डी टेक्स्ट, है ना, और क्लिक एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, है ना, पॉइंट टू हाइट एंड रोटेशन एंगल इज 0। अब देखो मैं क्विकली कैसा पूरा डायमेंशन लिख देता हूँ। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा पॉइंट सी हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया। दिस इज कॉल्ड ओ बाई पी, है ना, बराबर ऐसा लिखता था मैं। तो मेरा ये हो गया मेरा पॉइंट ए डैश बी डैश, सॉरी बी डैश, है ना। ये हो गया मेरा सी डैश डी डैश, ये हो गया मेरा पी ओ सॉरी ओ डैश, क्योंकि ये मेरा वर्टेक्स है, और ये मेरा पॉइंट हो गया पी डैश, पी डैश। ओके, तो बस अगर मैं कॉपी करता हूँ तो ये पूरा नाम के साथ में आएगा यहाँ पे, बराबर है। तो ये मेरा हो गया A1, ये मेरा हो गया बेस B1,
है ना। ये मेरा हो गया C1, ये मेरा हो गया D1 और ये मेरा हो गया O1 और ये मेरा परसेंटर हो गया मेरा पॉइंट P1 और बस ये नाम के साथ में ये आपका सॉल्यूशन बन के रेडी है। सो देखिए जब आपको कमांड, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कमांड मैंने बताया आपको, रोटेट वाला कमांड जो बताया, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को मैं बेसिकली कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को मैं YouTube पे डालूं आपके लिए, है ना। तो आपको पसंद आया, ये आपको समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर हो गया आपके डाउट थोड़ा? यस सर। अभी ऐसा है हिचकिचाहट कि सर कैसा होगा कैसा नहीं होगा? बहुत सिंपल है, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप समझ में आ रहा है क्या? आप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, रोटेट मूव कैसे करते हैं, डायमेंशंस कैसे देते हैं, ये सब चीजें अभी आपके पास में नहीं होना चाहिए। ये सेकेंडरी होगी। अभी आपको बस फोकस करना है ड्रॉ कैसे करते हैं। हमारे पास में यूट्यूब में बहुत से वीडियो अवेलेबल है, बराबर है। सेक्शन ऑफ सॉलिड के अवेलेबल है, आइसोमेट्रिक के अवेलेबल, उसको भी देखिए, कॉन्सेप्ट भी देखिए, तब जाके और आप पास हो जाएंगे आराम से। तो इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट है? देखिए सिर्फ 36 बच्चों ने इसका लाभ लिया है अभी आज के क्लास का, ठीक है। तो अभी आपका क्लास होगा दूसरा, ठीक है। यस सर। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास बेसिकली, ओके। प्रैक्टिस कीजिए।